तो तो आज आपका लास्ट नाइट है कैंपस में, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा सा वैसे है कि कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। सो के जा रहे हो? हाँ, क्या मिस करोगे सबसे? सबसे ज़्यादा तो दोस्त ही याद आएंगे। दोस्ती। Who are some of your best friends? Yes. हार्दिक, देव, दीप, ध्रुव, शुभम, अक्षत, जैद, आयुष. Do you remember the first day when you joined IIT? Actually, it was online for the first day. The convocation was online and everything. The first class was also online. But And after COVID, when you after COVID, when we came first 14 days we spent in quarantine. Then we started going to labs and all, and that's how I met my best friends here in the labs. So 4 years have passed. Uh, tell me anything, like any incident, very interesting incident in the campus, Very interesting. or craziest incident. Actually, there was one class was going on and sir was teaching, and someone just marked his attendance and ran through the. There were two doors to the classroom. He ran from the back door. Then sir sprinted to catch him. That was the most craziest thing that I saw. I was sitting on the first bench. Then sir sprinted. I was like, what happened? Then he caught the guy and he came with him. So, before getting into an IIT, people have some idea that IITs are like this, like that. Okay, and people have their dreams about IITs. And tell me the difference between those phases, like before getting the opportunity of joining an IIT and after joining an IIT. Is there any difference, like expectations and reality? Like, I didn't kept my expectations very high, but like the people around me used to say like it is very good. The coaching institute which I studied, they were like ज़्यादा तारीफ कर देते थे चीज़ों की, ओवर एग्जर्ट कर देते थे और ऐसे ही चलता था. So you had coaching as well. Yes, in 10th, 11th, 12th. In these. So you were in Kota? No, I studied in Ajmer only. Okay. So tell us about your childhood. Childhood, actually, I don't remember much before the age of 6. After that, After when you remember things. After that, I remembered like we were used to live just 4 or 5 houses. There were only 4 or 5 houses. This difference between the school and our home. We used me and my elder sister used to go to the school like that. और वो हम तब किराए के घर में ही रहते थे, तो वैसे ही था. फिर वहाँ पे दोस्त थे, वैसे इतना याद है वो उनके साथ खेलता था. वो तब की भी मेरे को ज़्यादा चीज़ें याद नहीं अच्छे से. फिर 2010 में हम शिफ्ट किया था, खुद का घर बनाया था. फिर वहाँ से थोड़ा सा दूर हो गया था और फिर जाने में टाइम लगता था, पर अच्छा था. फिर वहाँ पे दोस्त बने थे. फिर ऐसे ही चला था. फिर 6, 7, 8. फिर 7th में मेरा एक दोस्त था, उससे हेमंत, उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरी. और फिर उसके बाद तो ऑलमोस्ट मतलब 12th तक साथ ही था वो मेरे. हमने साथ में ही वो कोचिंग में भी साथ में थे, स्कूल में भी साथ में थे. तो और बहुत दिक्कत हुई थी 11th 12th में तो हम दोनों को ही, तो उस दिक्कतों में साथ में ही थे. तो उससे तो बहुत अच्छी दोस्ती थी मेरी. बेस्ट फ्रेंड मेरा वही था. और अब तक तो ऐसा है, कोई दिक्कत है नहीं कि घर वालों ने कभी ऐसे किसी चीज़ के लिए ज़्यादा फोर्स किया है नहीं, और अच्छा ही चला है अभी तक तो सब. कितने दोस्त छूट गए मतलब अभी लाइफ से? बहुत सारे छूट गए. बहुत सारे ना? मतलब छूटे तो नहीं, मतलब ज़्यादा बात नहीं होती उनसे, पर कभी कभी हो जाती है. हाँ, कभी कभी हो जाती है. वो चीज़ वैसी है कि
जैसा छोड़े थे वैसे के वैसे ही है वो। हम्म। जैसा बात करते थे तब भी एक मैसेज करता हूँ तो रिप्लाई वैसे आता है जैसा तब आता था। तो देख के अच्छा लगता है कि हाँ अभी भी वही है। और होप करता हूँ कि कॉलेज के दोस्त भी ऐसे रहेंगे। आगे तो देखते हैं। Any childhood memories of your parents? पेरेंट्स Like when you were very young during those days, how were your parents? they actually like my mother my mother is a teacher and my father work in railway in Ajmer only. But my mother was first where she was when I was 3, she where the place she was, I guess in Savai Madhopur. Where there was a school in Savai Madhopur, she used to teach there. So there was a large distance between. She used to come on Saturdays and Sundays. So I used to, like, my dad took care of me till 3-4 years after, since the 3 to 7. So I'm closest to my dad and my sister. तो उनसे ही बहुत ज़्यादा, मतलब सिस्टर से तो बहुत ज़्यादा, उनको तो मोस्टली सारी चीज़ें पता है मेरे बारे में कि मैंने ड्रिंक स्मोकिंग कभी की नहीं है, उनको सब पता है। वो कोई उनको जाके बोलेगा तो वो मानेंगे भी नहीं। जितना मतलब उनको ऑलमोस्ट सब कुछ पता है मेरे बारे में। और पापा को भी ऑलमोस्ट सभी चीज़ें पता है। पापा ये मान सकते हैं कि मैं किसी को है ना पीट के आ सकता हूँ पर गाली नहीं बोलूँगा या फिर दारू या फिर वैसे स्मोकिंग नहीं करूँगा, वो जानते हैं। तो वो थोड़ा सा वैसे है कि क्योंकि मैं वैसे ही रहता हूँ, उनको लगता है कि मैं फिजिकल वायलेंस ज़्यादा करूँगा रादर देन द वर्बल वायलेंस। तो यहाँ पे आके थोड़ी चीज़ें चेंज हुई है। फिजिकल वायलेंस काफ़ी कम कर दी मैंने, वरना स्कूल में तो ऐसा ही था मैं। बस ऐसा ही है। So who are you, more close to, your mom or dad? Actually both. Like I am close to my father because he taught me how to live. Like How to live? Live. Okay. Yes. So what does he was say? strict, but the most loving in the whole family. My mother is kind, but my father is more loving. Okay. Like, yes, that's how it is. वो पापा दिखाते नहीं है पर सबसे ज़्यादा प्यार पापा ही करते हैं हर चीज़ में। अच्छा। और मम्मी का ऐसा है कि मम्मी तो मम्मी है, मम्मी तो ध्यान रखेगी। मम्मी की नज़र से तो आप हीरो हो। हाँ, आप बहुत हैंडसम हो। हाँ, अच्छा, आपका मम्मी जो है कभी बोला आपको कि आप बहुत हैंडसम दिखते हो? हमेशा बोलते हैं, है ना? तो आपका मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं? मम्मी पापा दोनों ही? मतलब वो ऐसा है ना कि दोनों ही साथ में ही इतने सालों से। और ऐसा था कि दोनों को वर्क पे जाना था, दोनों को सबको संभालना ही था। क्योंकि एक्चुअली माय फादर केम फ्रॉम अ फार्मर बैकग्राउंड एंड देन उन्होंने ही उनके छोटे भाइयों को पढ़ा के आगे बढ़ाया। तो उनके जिम्मेदारियां बहुत थी उनके। तो वो एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहते थे, पर सम लाइक the pressure from to keep the family, like he was the second in the whole 7 siblings, so he had to take care of the family. तो उन्होंने रेलवे में जॉब की, अपने सभी छोटे भाइयों को लगा दिया, मतलब सभी जॉब पे। मेरे चाचा मतलब जो पापा से छोटे हैं वो पटवारी थे और अभी गिरदावर बन चुके हैं। उनसे छोटे वाले पुलिस में है और उनसे छोटे वाले कलेक्टर ऑफिस में है। उनकी भी थोड़े साल पहले लगी थी। So almost everyone is well established now. Yes. And मेरे जो बड़े पापा हैं, मतलब पापा के जो बड़े भाई हैं, वो अभी फार्मर ही हैं। उन्होंने दादाजी का कंटिन्यू किया था। और ऐसे ही है, मतलब 5 ये हैं और 2 सिस्टर्स थी उनकी पापा की, और वो मैरिड हैं। मतलब अच्छा चल रहा था, मतलब उन्होंने पूरा संभाला है पूरी फैमिली को। तो उन पे मेरे को बहुत ऐसा भी लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। और एक्चुअली क्या था ना, उनके
किडनी में भी प्रॉब्लम थी, तो हम्म। उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा किया है, मतलब पापा ने किसी ने एक्चुअली जो वो सॉरी हम्म। तो किसी ने जब वो छोटे थे ना, किसी ने हम्म। लात मार दी थी उनके, तो उनके हम्म। एक किडनी 20% ही वर्क करती है, तो उन्होंने काफ़ी हम्म। देखा है चीज़ों को। हम्म। वो मतलब काफ़ी स्ट्रांग है मेरे पापा, मतलब बिल्कुल ऐसे दुबले पतले से लगता है। हम्म। हम सभी ऐसे ही है, हेल्दी है, मम्मी मैं दीदी सब, हम्म। पर पापा पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पापा ही है। So have you ever been to that place, like where your father spent his childhood days? Yes, we all every Diwali we went there. Okay. And your grandparents are there still? Actually, my grandfather died in 2011 Mm. or 2012. I don't remember actually the date. It was said, so I don't remember the date. Okay. It was around that time only. I guess 2011 it was. And my grandmother is there. हम गाँव उनसे मिलने जाते हैं मोस्टली, तो अच्छा। अगर वो फिर जाएंगे नहीं, मतलब पापा का तो यही है कि मेन मोटिव यही होता है कि वहाँ जा रहे हैं तो दादी से मिलने ही जा रहे हैं, वरना तो जाने का मतलब नहीं है। मेरे पापा उनकी मम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने उनका ध्यान रखा था, जैसे मेरे पापा ने रखा सबका ही, वैसे अभी भी है? अभी है, अच्छा, दादी अच्छा, है अच्छा। अभी, सबसे ज़्यादा उनसे क्लोज है पापा भी। तो आपका, हाँ, दादी का प्यार तो आपको मिल ही रही है अभी भी। और आपका जो मम्मी की साइड से? मम्मी की साइड कहाँ से से हैं भी नाना जी की डेथ हुई, अभी रिसेंटली हुई थी, मतलब 4-5 साल पहले। और मम्मी कहाँ से हैं? मम्मी मतलब पापा मेरे टोंक के पास में एक गांव है निर्बाणा करके, वहाँ से है। और मम्मी बूंदी के पास देई नैनवा है, उसके पास में एक गांव है बंसोली, वहाँ से है। तो वहाँ से है मम्मी पापा। तो नाना जी की डेथ हो गई थी, नानी अभी भी है, हम मिलने जाते रहते हैं उनसे भी। जैसे सर्दियों की छुट्टी में दिसंबर एंड में उनसे मिलने जाते हैं, तो ऐसे फिक्स हो रखा है कि मिलने एक बार, एक साल में एक बार तो चले ही जाते हैं कम से कम, नहीं तो फिर छुट्टियां बीच में आती रहती है तो जाते रहते हैं। कभी कभी तो उनको ही बुला लेते हैं, जैसे अभी गर्मियां हैं तो उनको बुला ही लेते हैं पापा, तो क्योंकि गर्मी की छुट्टी में मैं और छोटा भाई, मतलब चाचा का लड़का है वो, छोटे भाई जैसा ही है वो, मतलब पापा मम्मी का भी डिफरेंस नहीं करते, मेरे में दीदी में उसमें, तो छोटे भाई जैसा ही है वो मेरे। और तो वो रहता है तो दादी को भी वहीं बुला लेते हैं। तो So when did you realize that you have grown up and you have some responsibilities now to fulfill? Not yet, I guess. Not yet. Okay. Actually, I am the second child and I am the most protected one. So कभी ऐसा लगा नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी हैं, पर ऐसा है कि आ गई तो हैंडल कर सकता हूँ। अभी तो ऐसा लगता है, पर पता वो तो जब आएंगी जब भी पता लगेगा। Is there anything that you want to change about your childhood now? Childhood, like nothing much actually. Everything is fine. Okay. So what's the biggest life lesson you have ever learned so far? The thing biggest, to smile. To smile. Yes. Whatever happens, smile. Smile. It will And move on. end like पहले भी सब अच्छा ही हुआ था, आगे भी सब अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। यही सोचा है, यही मेन चीज़ है। मैंने पिछले 2 सालों में ही मेन ये चीज़ सीखी है उसके, क्योंकि सब अच्छा ही हो जाता है एंड में। फिल्म की तरह। हाँ। अब हैव यू वॉच्ड ओम शांति ओम? हाँ, उसमें था कि वो डायलॉग पता ना एक बार, कि वो वाला डायलॉग, हाँ, बहुत ही फेमस। लाइक ऐसा ही था कि अगर हैप्पी एंडिंग नहीं हुई तो पिक्चर अभी बाकी है। हाँ। थैंक यू। So who is your role model? Like you My want to be father. like your father? Yes. He's so loving and he taught you how to live. What is according to him how to live? What is according to him how to live life? According to him, keep like protect everyone and love
Love everyone. Love everyone, and like he was the most strict person, but like वो कभी दिखाते ही नहीं है, पर सबसे ज़्यादा प्यार वही करते हैं. डांटते नहीं कभी? डांटते बहुत है. बहुत, पर पता लगता है ना कि सबसे ज़्यादा चिंता उनको ही रहती है. मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर आता हूँ तो उनके चेहरे पे दिख जाता है कि परेशान हूँ मैं, और वो मेरे को देखते पता लगा लेते हैं. जैसे थोड़े दिन पहले मैं थोड़ा सा परेशान था, तो उन्होंने फ़ोन किया, तो मेरे कुछ बोलने से पहले उन्होंने पूछ लिया कि तू परेशान लग रहा है, क्या हो गया. तो वो मेरे को अच्छे से जानते हैं कि मैं वो चेहरा देख के बता सकता है मैं खुश हूँ या दुखी हो रखा हूँ. बहुत अच्छा. So are you an introvert or extrovert? Actually depends. Like I am not totally introvert. Like if someone talks to me, I can freely talk to him. मैं पूरा खुल जाता हूँ. मैं सब कुछ सच बोल देता हूँ. इतना मैं झूठ ज़्यादा बोलता नहीं हूँ. और ऐसे कोई बात नहीं कर रहा तो मैं चुपचाप रहता हूँ. मतलब चुपचाप भी रह सकता हूँ, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है मेरे को. अच्छा. Like खुद की कंपनी एंजॉय करना सीख चुका हूँ. अच्छा. So you have learned how to enjoy solitude now. Okay, good, very good. You have. Do you मतलब what do you think? You are a matured guy already or not? Don't know. Actually, I am very like emotional. I don't hide my emotions. Okay. Mostly, like I said, I was very violent. Like I'm controlling it now. Controlling emotions. So you know now how to control emotions. Somewhat. Okay. So tell me how to control emotions. People sometimes fail to. Like I have not achieved it completely, but controlled it a little, like by smiling actually. By smiling. Smiling, walking, and like staying healthy. Like when I was used, like मैं पहले ऐसा हो गया था कि कमरे में बंद रहता था, काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड रहता था, एक जगह पे पड़ा रहता था. तो ऐसा था कि गुस्सा भरे जाता था, चीज़ें दिमाग में रखता था ज़्यादा, तो वो भर जाती थी. फिर वो इमोशंस ज़्यादा ही बाहर निकलते थे. मतलब एक बार में बस्ट आउट हो जाते थे इमोशंस. कभी कभी तो ऐसी जगह पे बस्ट आउट हो जाते थे जहाँ पे उनकी नीड नहीं थी. मतलब किसी और का गुस्सा किसी और पर निकल जाता था. तो अभी वॉकिंग वगैरह चालू की थी, थोड़ा बहुत वेट लॉस किया, तो उसमें ऐसा हुआ कि हाँ कि थोड़ी अच्छा लगने लगा कि मतलब पता नहीं इस ऐसे पॉजिटिव लगने लगा. ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो थोड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन ही जाता है आसपास, और उससे ही थोड़ा कंट्रोल में तो आ गया है. Especially anger, we cannot actually control when someone makes us angry, right? I still don't control it actually. Like So how do you express anger? Like मतलब you are actually anger actually controls you, right? Yes. when it captures you. Like the only thing I keep in mind currently, like what I learned, that I have to just control my fists. हाथ नहीं उठाने, बाकी तो कुछ भी बोल दूं, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे कंट्रोल करूंगा. पहले तो अंदर में तो स्टॉर्म चलता है. हाँ. तो हाथ नहीं चलने चाहिए, क्योंकि फिर बात ज़्यादा बिगड़ जाती है हाथ चला देता हूँ. थोड़ा बहुत अभी तो थोड़ा बहुत मुंह से कुछ भी बोल देता हूँ. अभी तो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा, पहले तो कंट्रोल कर लेता था, मुंह से तो हाथ चलते थे पहले, तो अभी मुंह चला लेता हूँ थोड़ा बहुत. अभी उसको भी कंट्रोल करूँगा धीरे धीरे. Do you meditate then? Do you meditate? Meditation? No, I tried it, but I guess I'm still not ready for it. हाँ, तो उस दिन आप बोल रहे थे कि you have lost weight. Yes. Tell me about those like things. I was 110 in like September last year. So there I was thinking of starting like trying to lose weight, because like I have started to have digestion problems. Like it was weak digestion, so मैंने सोचा कि स्टार्ट करूँगा, पर कभी ऐसे मन नहीं किया, मतलब कभी हिम्मत ही नहीं हुई. फिर एक दिन ऐसे ही था कि मेरा दोस्त है एक ध्रुव, वो ऐसे है कि वो उसको भी जाना था, मतलब वो जिम जाता था घर पे, उसका वेट काफ़ी कम था, तो इसलिए उसने स्टार्ट किया था, उसने काफ़ी गेन कर लिया था. और फिर वो ऐसे ही था कि वो यहाँ पे आके छोड़ देता था, घर पे जाता था.
तो वही सितंबर में हमारे जो G2 हॉस्टल था उसमें भी जिम इक्विपमेंट्स आ गए थे। तो उसने मेरे को बोला तू चल ले एक बार ट्रेडमिल पे चल लियो। मैं चला गया, मैंने आधा घंटा उस दिन ट्राई किया। तो फिर मैंने उसी रात को सोच लिया था कि कल से सुबह जल्दी उठते हैं और चलते हैं। तो मैं अगले दिन 4 बजे उठा, स्टार्ट किया। फिर मैं वापस 12 बजे आते थे तो मैंने उस दिन खाना छोड़ दिया, फिर वापस चला गया वहाँ पे। तो ऐसे ही ट्राई किया एक दिन और 21 डेज हो गए। तो मैंने ना एक मूवी देखी थी, वो अल्लू अर्जुन की थी, सूर्या द सोल्जर। अच्छा। तो उसमें ऐसा था कि 21 डेज अगर किसी चीज़ को कंटिन्यू कर लेते हो तो तुम उसको पूरी लाइफ टाइम के लिए अपना सकते हो, हैबिट बन जाता है। तो उस चीज़ को मैंने कंटिन्यू रखा। तो उसी टाइम पे ना उसके आसपास ही था, मतलब सितंबर या अक्टूबर में वो 75 हार्ड वाला चैलेंज भी स्टार्ट हो गया था, मतलब उसी टाइम था। तो मैंने सोचा कि इसको 75 वाले वो करते ही हैं। तो वो 74 डे तक तो परफेक्ट था। उसके बाद 75 डे को ऐसा था मेरे को यहाँ से वापस जाना था और उसके उसी दिन शादी भी अटेंड करनी थी। तो 74 वाले डे तो मैंने 10 किलोमीटर वॉक कर लिया था, पर उसके अगले दिन ऐसा था कि ट्रैवल में पूरा निकल गया था, तो वो नहीं कर पाया था, तो वो उस दिन छूट गया था। फिर कंटिन्यू फिर उस घर पे जाके सिर्फ वॉकिंग की, क्योंकि जिम इक्विपमेंट्स नहीं थे। फिर वापस आया तो यहाँ पे जो ट्रेडमिल और साइकिल थी वो ख़राब हो रही थी। तो फिर मैंने ग्राउंड में स्टार्ट की वॉकिंग और डंबल्स वगैरह स्टार्ट किए। तो वैसे ही कंटिन्यू किया और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि जैसे जब ज़्यादा वेट होता है जब तो जल्दी जल्दी जाता है, तो जैसे जैसे कम होने लग गया तो उसका ड्रॉप भी कम होने लग गया। तो फिर एक महीने में मैंने सोचा कि ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो फरवरी में मैंने ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स रोज़ चलना स्टार्ट कर दिया था और वो ही मैंने मार्च में पूरा कंटिन्यू किया था। तो मैं 5 किलोमीटर हर महीने 5 किलो हर महीने कम करना था, ऐसा सोच के चल रहा था। तो मार्च एंड तक मैंने जो टारगेट था 80 का वो अचीव कर ही लिया था। मार्च, कांग्रेचुलेशंस। फिर अभी अप्रैल और मई तो मैंने उसको कंट्रोल ही रखा है कि खाना मैंने वापस उतना ही कर दिया और उसको कंट्रोल कर रहा हूँ कि 80 ही रहे। अभी 79 ही है, तो सही है सब। So you just told me that you take decision that you want to talk to some person or not. So how do you decide that I should speak to him, I should open my mind? Like if someone starts talking to me, then I am ready to open. Okay. And if I want to talk to him, like it takes a lot of courage from me to start talking. It is easy for me to continue the conversation than starting it. Okay. So you are yet to gain that starter thing. Yes. Like that इसको ना ice breaker बोलते हैं कि शुरुआत करना जो है. हाँ. Actually it is the opposite with me. I can start the conversation with random people. And I can keep on asking different questions and all those things. Yeah. So what are you most passionate about? Like some things maybe. Like most passionate, like I don't get anything like that. I have to be like जैसा कि मेरे को इसमें यही कुछ करना है, ऐसा कुछ मिला नहीं। पर मूवी देखना मेरी एक हॉबी है जो मैं कभी छोड़ा नहीं हूँ। मतलब बचपन से ही देखता था, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट किया, मतलब पहले कार्टून, फिर मूवीज, फिर ऐसे ही स्टार्ट किया सीरीज वगैरह सब कुछ। मतलब अभी तो मैं ऑलमोस्ट पॉप कल्चर पूरा ही कंज्यूम करता हूँ, एनिमे, मूवीज, सीरीज। So you are on all the social media sites like Facebook, Instagram. Like I'm the Facebook account is only for the games. Instagram I joined due to the college. Some friends asked me to join and comment on some posts. That's why I joined it. And for 3 months I uninstalled it because I was working on my health, and I installed it in like 2-3 weeks before, and I will uninstall it again after going back to home. This is I guess I am not on social media actually. Okay. Because it is more like a
it is not social, like it is more like show off media for me. So I try to stay away from it. What is, according to you, that youth, especially of your age, they are addicted to, according to you? Addicted to, like depends on condition. Like actually there are many addictions. Like some people got addicted to drugs and alcohols, and some maybe get addicted to porn, and like there are many types of addictions, and people of my age are more vulnerable to it. So I try, that's why I try not to smoke and drink. Like my friends asked me to, like they never forced me to do it. And I have promised to myself that I'm not going to do it. So I never did it. They said that you can once try it, doesn't happen, but I was like, no, I promised myself, so I'm not going to do it. So tell me about your love life. Like, who was your first celebrity crush, maybe? Celebrity crush. First Celebrity crush. Alia Bhatt? No, like I don't remember the first one actually. I don't remember when I started to have the feeling that she is my crush or like that. So tell me someone, maybe someone in real life, maybe? Like it was not crush. Like when I was in first class, तो मेरी दीदी ने क्या किया था, एक लड़की थी, उसका नाम लेके मैं उनकी फ्रेंड थी, उसकी बहन थी जो मेरी क्लास में थी, तो उनको उसका नाम पता लग गया, तो उन्होंने मेरे को उसके नाम से चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया. सो वो सब कॉन्शियसली मेरे माइंड में बैठ गया था, तो मेरे को पसंद आने लग गई. तो ऐसा ही चला था. तो अभी मेरे को रियलाइज होता है कि वो मेरे को इतनी पसंद नहीं थी. पर वो सब कॉन्शियसली दिमाग में बिठा दिया था उन्होंने, चिढ़ा के, तो वो मेरे को ज़्यादा पसंद आने लगी. तो वो थी. और अभी करंट टाइम पे तो रश्मिका मंदाना अच्छी लगती है मेरे को सेलिब्रिटी क्रश में. और ऐसे अगर उसमें देखें तो कौन, हाँ अभी तो रश्मिका मंदाना ही है. So what you just told, that some they conspired to make you fall in love with someone. Not like that. They use the name just to tease me. I just was very vulnerable, so I just got trapped. So you just told that during those days you liked her. Now your interests and all those things have changed. Like you, even your crush maybe changed now. That so what is that change? Like now you like these things in a girl. Like not like I want, not much. Like the crush is like I don't know her personally. The celebrity crush I'm talking about is just cause of the face. And for like I didn't like the personality of that girl. Like she was very manipulative. Okay. From what I thought by her actions. अब समझ में आता थोड़ा कि काफ़ी मैनिपुलेटिव थी. तो मेरे को ऐसी, मैं लड़की ऐसी ढूंढ रहा हूँ जो थोड़ी मैनिपुलेटिव नहीं हो, मतलब थोड़ी
समझदार हो मेरे से अच्छा, थोड़ी, अच्छा, अच्छा। तो मेरे को कंट्रोल भी कर सके, मेरे से स्ट्रांग होनी चाहिए, हाँ, ताकि अगर मैं कभी गलती से उस पर हाँ। हाथ भी उठा दूँ तो वो मेरे को पीट सके पकड़ के। अच्छा, अच्छा। तो मेरे को तो ऐसी ही हाँ, चाहिए। हाँ, तो मेरा तो यही है। और वैसे तो मेरे को थोड़ी समझदार चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा बेवकूफ़ हूँ, तो मेरे को ऐसी चाहिए जो मेरे को हैंडल कर सके। मेरा मेन तो वही है। मैं अब फेशियल ब्यूटी और वैसे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मेरा मेन एम वही है कि ऐसी ही चाहिए कि जो मेरे को संभाल सके। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो जो आप गर्लफ्रेंड के रूप में आपकी माँ को चाहते हो आप? मोर लाइक दैट। More like that. Okay, okay. तो आप बोल रहे हो कि बहुत बेवकूफ़ी करते हो आप, बेवकूफ़ हो। क्या है वो बेवकूफ़ी? मतलब जैसे गुस्से में मैं काबू नहीं कर पाता, अभी तो बहुत कंट्रोल कर दिया है, पर हाँ। वैसे नहीं कर पाता। और मैं काफ़ी नेव हूँ, मैं मतलब लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ। मतलब मेरे मेरे में उतनी समझ नहीं है। मतलब मैं चाहता हूँ कि ठीक है, सामने वाला जो बोल रहा है, मैं जो बोलता हूँ मैं वो सच ही बोलता हूँ। मोस्टली 80 to 90% मैं सच ही बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोलता, पर 80 to 90% मैं ट्राई करता हूँ कि जो बोल रहा हूँ सच ही बोलूँ, और छुपाता नहीं हूँ मैं चीज़ों को। जैसे लोग पीठ पीछे बोलते हैं, मैं जो बोलना होता है मुंह पे बोल देता हूँ। मेरे को ऐसे बुरा, सामने वालों को बुरा नहीं लगना चाहिए, और मैं मन में रखना नहीं चाहता चीज़ें, क्योंकि मन में रखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं उसके पीठ पीछे बोल रहा हूँ, तो उसको अगर कोई उसको बता जाता है तो उसको बुरा लगे। तो मैं ऐसा ही है कि मैं मुंह पे बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि ज़्यादा। तो मैं थोड़ा सा ऐसे हूँ कि मेरे को एक तो ये नहीं पता कहाँ कब कहाँ क्या बोलना होता है, और तो थोड़ा सा बेवकूफ़ हूँ मैं। तो मेरे को थोड़ी सी ऐसी चाहिए तो मेरे को संभाल सके, थोड़ा सा समझा सके। ऐसा ही है। काफ़ी नीव हूँ मैं, मतलब। Do you have siblings? Yes, I have two. I consider both. अच्छा, अच्छा। Like my sister is sibling, and the cousin Golu Bhupesh, he is like my sibling only. I consider him as my real brother. अच्छा, अच्छा। And tell us about your sister. She is like younger version of my mother. She always Okay. took care of me. Like I am वही है जिससे मैं सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ। सबसे ज़्यादा उसका ही पता है मेरे बारे में। अभी भी कुछ दिक्कत होती है मैं उससे बात करता हूँ। मेरा जैसे अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया लाइफ में आगे क्या करना है, तो अभी मैंने उससे बात की थी, तो उसने बोला कि अभी कोई टेंशन नहीं है, तू घर आ जा, पहले 10-15 दिन एंजॉय कर जो भी है, और फिर उसके बाद देख लियो। और ऐसा है कि मैं बचपन से उसको फॉलो करता आ रहा हूँ। मतलब वो एक्चुअली वो बहुत वैसी है कि उसको काफ़ी कुछ अचीव करना है, वो ऐसी है। तो वो हर बार मेरे लिए एक टारगेट सेट करके जाती है। वो भले ही कुछ फेल हो जाती है, पर वो टारगेट सेट कर जाती है। और अभी तक लाइक मेरा लक इतना अच्छा रहा है कि जो भी उसने टारगेट रखा था वो मैंने अभी तक अचीव कर लिया है। अच्छा, अच्छा। तो एक्चुअली उसका पहले टारगेट था कि उसको 10th में 90% लानी है, तो वो मैंने अचीव कर लिया था। उसका नहीं हो पाया था। और उसका IIT में आने का मेन वही था, उसका ही था, उसने स्टार्ट किया था। तो उसी पे मैं चला था और मैं आ गया। उसका नहीं हुआ था सैडली, बट लाइक शी पेव्स द पाथ, आई जस्ट वर्क ऑन इट। अभी क्या कर रही हो? अभी वो बैंक में है। तो अभी उसने मना किया है कि यहाँ मत आना। काफ़ी प्रेशर होता है। हाँ, प्रेशर बहुत होता है। मतलब मनी ठीक है, बट प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तू हैंडल नहीं कर पाएगा। तू काफ़ी ज़्यादा वो वैसे है कि इमोशनल है। तो मैं कैसा है कि मैं जैसे मैंने बताया कि मैं ज़्यादा छुपाता नहीं चीज़ों को, तो वैसी जगह है नहीं वो। मतलब वैसे रहना पड़ता है कि अजीब अजीब से लोग आते हैं। उसने बोला है कि यहाँ तू हैंडल नहीं कर पाएगा, तो देख लियो। तो मैं ट्राई करूँगा जो वो बोल। जैसे तो मेरा डिसाइडेड है कि जो पापा या और वो डिसाइड करेंगे वो मैं कर लूँगा। हर बार का यही है, क्योंकि मैं कभी भी वैसे जैसे मैंने बताया कि मैं थोड़ा सा वो मेरे को डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आती है। तो अगर कोई मेरे लिए डिसीजन ले ले तो वो मेरे लिए ईजी है कि मैं उस पाथ पे चल के वो अचीव कर लूँ, रादर देन थिंकिंग समथिंग योर ओन। या ओके, ओके। What do you want to do for your parents, especially like in your lifetime, that I want to do this thing for them, like and also for your sister, to make them happy, maybe in your lifetime, not right now.
I just want to keep my family closer. Like I always want to live with them. Like my father is living in Ajmer cause of the distance. वो क्योंकि दादी को वहाँ शहर में अच्छा नहीं लगता, वो गांव में ही रहना पसंद करती है. तो ऐसा ही है कि वो लेके आ जाते हैं उनको, पर उनका खुद दादी का ही मन नहीं लगता शहर में, क्योंकि उनके वहाँ पे किसी से जान पहचान नहीं है. तो ऐसे निकल जाता है उनका दिन बैठे बैठे एक जगह पे. तो ऐसा है कि मेरे को मम्मी पापा के साथ ही रहना है मोस्टली. वो खुश रहेंगे मेरे हिसाब से उसमें ही. वो उनको चाहिए ही क्या होता है कि बेटे साथ में रहें, बेटे बेटी जो भी हैं. और मैं दीदी के लिए तो यही चाहता हूँ कि उनकी जो भी है, वो जो भी चाहती हैं वो अचीव कर लें, और फिर वैसे ही है. तो और अगर वो कुछ भी बोलेंगी वो मैं ट्राई करूँगा, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो भोले बाबा ने कुछ और सोच रखा हुआ. अच्छा अच्छा. और तो ठीक है फिर. थैंक यू. होप यू हैव एंजॉयड Yes. द कन्वर्सेशन. थैंक यू सो मच.